Hi everyone, welcome to the new video in this A to Z series of RBI Grade B. In this series, we are discussing detailed preparation strategy through different videos so that all your questions get answered at one place. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं F फॉर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था E फॉर ESI इंग्लिश। इस तरह हर अल्फाबेट से हम आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का एक कंपोनेंट एक एरिया कवर कर रहे हैं। इफ यू वांट टू वॉच द एंटायर प्लेलिस्ट, द लिंक टू वॉच दिस प्लेलिस्ट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। उस पर क्लिक कर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। Now, why to watch this video? Obviously, as I told you in this video, I'm going to tell you the complete strategy for finance and management, but there are a lot of other videos on the strategy for finance and management. इस वीडियो में क्या खास है? इस वीडियो में सबसे पहली चीज़ है ये अपडेटेड है। बाकी वीडियो स्टेल हो चुकी हैं। दिस इज अपडेटेड स्ट्रैटेजी एज पर द रीसेंट पेपर। काफ़ी चेंजेस हैं, वो आपको पता लगेंगे। देन दिस इज वेरी डिटेल्ड। थोड़ा लंबा रहेगा, अप टू 30 मिनट्स दिस वीडियो, बट दिस विल गिव यू वेरी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी एंड दिस इज वेरी एक्सप्लेनेटरी। व्हेन आई एम telling you something, I'll explain it by mapping it to the syllabus and through previous year questions so that you understand what I'm trying to say rather than it being just a ज्ञान। और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने यस आई बता दिया है पिछले वीडियो में, इस वीडियो में आप एफएम के बारे में बता रहे हैं, व्हाई आर यू नॉट टेलिंग दी स्ट्रैटेजी फॉर फेज 1? तो ई से ईएसआई इंग्लिश किया है, ई के बाद एफ आता है, हमने एफएम इस वीडियो में किया है, एफ के बाद जी आता है। हम क्यूआरई जीए को जी जो गेम प्लान वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे। चलिए फिलहाल एफएम पे फोकस करते हैं। सो योर एफएम कंपोनेंट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्जेक्ट्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट। बोथ of them contribute around 50 marks, though this is not a rule. This can be 55, this can be 45, or this can be 55, this can be 45, but as in general we can say that both will contribute 50-50 marks each in this 100 marks worth of paper. तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। तो मैनेजमेंट को इफ आई वांट टू ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, इट वुड बी मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं मैनेजमेंट के, एमसीक्यू बेस्ड, एंड देयर वुड बी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट वुड बी डिस्क्रिप्टिव। तो इसका वेटेज आउट ऑफ 50, ठीक है, मैनेजमेंट 50 का है, 25 मार्क का अराउंड ऑब्जेक्टिव रहेगा, 25 मार्क का डिस्क्रिप्टिव रहेगा। अगेन दिस इज एन आइडिया, दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट रूल। So let's start with management objective first, which is worth 25 marks. So if I tell you the syllabus, now this is the syllabus given in the notification. I have highlighted the main chapters through yellow part. अब इसको मैं अगर summarize करूं, these are the main chapters in your syllabus: motivation, leadership, communication, journal management, emotional intelligence, personality perception, conflict, organizational change and reinforcement, corporate governance and ethics. These are the main chapters. Now, the next question that would come to your mind is that are there any important chapters in management? The answer is completely no. See, you need to understand कि मैनेजमेंट के अगर आप चैप्टर्स देखेंगे, दे आर वेरी जेनरिक. Everybody can understand motivation, leadership. These are very generic and they have a limited scope. Why they have a limited scope? Because there are no current affairs. This is just plain theory. So due to them being generic and the scope being limited, management is very scoring. One can easily score, I would say, 40 out of 50 or maybe 45 out of 50. अभी भी स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे. So, if your target is to score 45 out of 50, how can you afford to leave 2-3 chapters? Because if some questions come from them, you're gone for a toss. So, everything is important. Rather, what is mentioned as chapters here, I would say that go beyond that. Go beyond the syllabus which is mentioned in the notification. So, I would say do not take this as 100% complete. I'll explain it through an example. In your syllabus, there is a mention of motivation. और मोटिवेशन में दे हैव गिवन यू सर्टन थ्योरीज. कंटेंट थ्योरीज में दे हैव मेंशन मैस्लो, एल्डरफर, मैक्लेलैंड, हर्सबर्ग. वेयर एज इन प्रोसेस थ्योरीज दे हैव मेंशन एडम्स, वीरूम्स थ्योरी. तो ये कुछ थ्योरीज हैं जिन्होंने मेंशन की हैं, और कुछ थ्योरीज हैं जो मोटिवेशन से रिलेटेड हैं बट दे हैव नॉट मेंशन इन योर सिलेबस. फॉर एग्जांपल सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, थ्योरी एक्स इन थ्योरी वाई. दीज थ्योरीज आर related to motivation but they are not mentioned in your syllabus. सो क्या एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं थ्योरी से आएंगे या इधर से भी आ सकते हैं? लेट मी शो यू. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड इन योर पास्ट ईयर पेपर्स, वेयर दे आर आस्किंग यू some question that manager perceptions of employees can vary significantly. Some view employees as lazy, whereas others may employees as enthusiastic. तो
क्वेश्चन यही है कि कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग मैनेजर ऐसे बिलीव करते हैं. द आंसर वाज थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. नाउ इफ यू सी व्हाट आई वाज टेलिंग यू, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई is not mentioned here in the motivation theories, but this is related to motivation, though not directly mentioned in your syllabus, but question have been asked from it. Similarly, I'll show you one more question on corporate governance. Identify the theory of corporate governance which is based on perception that corporation to be effective function has to forego a number of relations. So basically the question is on theory of corporate governance. Now if you see under the corporate governance, they have mentioned factors affecting corporate governance, mechanisms of corporate governance. They have not mentioned theories of corporate governance. लेकिन क्वेश्चन कहां से आया है? थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से. सो अगेन दिस इज एन एग्जांपल कि जो आपके सिलेबस में लाइंस लिखी हुई हैं सिर्फ उन पे फोकस नहीं करना है. सिलेबस इज इंडिकेटिव नॉट एग्जॉस्टिव. ये इंडिकेट कर रहा है कि क्या क्या मेन एरियाज हैं, बट दैट डजंट मीन कि अगर इसमें एक वर्ड नहीं है तो उस पर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है. दैट इज वाई आई एम सेइंग डू नॉट टेक दिस एज 100% कंप्लीट. यू नीड टू गो बियॉन्ड दिस. Whatever is given in standard textbooks related to this topic, usko padhiye. You have time, right? You should not be risking your selection by leaving such part. ये तो थोड़ा सिलेबस की बात होगी. नाउ इन दी मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव जो मैंने बताया आपको 25 मार्क्स का आएगा. देयर वुड बी 1 मार्कर क्वेश्चंस इन योर पेपर. आई होप यू अंडरस्टैंड द पैटर्न. अदरवाइज आई हैव एक्सप्लेन द पैटर्न इन फर्स्ट 2 वीडियोस ऑफ दिस सीरीज, तो आप उसको जाके देखिए. या फिर 2 मार्कर क्वेश्चंस आएंगे. 1 मार्कर क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. आई विल शो यू सम एग्जांपल्स. Whereas 2 marker questions are very lengthy paragraph based conceptual questions, or they are RC based questions. I'll explain each and everything. So let me first tell you 1 marker questions जो simple and straight forward है. तो जैसे ये देखिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जोहारी विंडो मॉडल में which quadrant represents the part known to the individual but unknown to the others. तो इसका आंसर हिडन है. Which of the motivation theories is determined by how much the person values the outcome? इसका आंसर expectancy theory है. You might not be able to answer these questions right now, but just by reading the questions, you can at least comprehend कि ये questions थोड़े easy हैं, direct हैं, straight forward हैं. तो 1 marker में ऐसे questions आते हैं. अगर मैं 2 marker की बात करूं, as I told you, there are 2 types of questions. Either they are lengthy पैराग्राफ बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जिसमें आपको 600 to 700 वर्ड्स के पैराग्राफ आएंगे. अर्लियर देयर यूज्ड टू बी 300 to 400 वर्ड्स वर्थ पैराग्राफ, बट अब ये 600 to 700 वर्ड्स वर्थ ऑफ पैराग्राफ्स आते हैं. बड़े बड़े पैराग्राफ्स आते हैं. तो पैराग्राफ में दे विल टेल यू सम सिनेरियो, दे विल try to make a case study in that paragraph, and then based on that paragraph they will ask you some questions. Okay, with regards to the above paragraph, if an employee is currently at physiological need, then what will be the highest level as per Maslow motivation theory? तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होंगे या पैराग्राफ में जो चीज मेंशन्ड है उस चीज पर मेंशन होंगे, मे बी पैराग्राफ से डायरेक्टली आंसर नहीं होंगे. तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बट ये पैराग्राफ्स बहुत लेंदी हो रहे हैं. अर्लियर दे यूज्ड टू बी 300 वर्ड्स, बट नाउ 600 to 700 वर्ड्स के आ रहे हैं, विच माइट कंज्यूम लॉट ऑफ योर टाइम टू रीड द पैराग्राफ्स. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो आरसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. बट उससे पहले इन टाइप के क्वेश्चंस को जो मैं बोल रहा हूँ केस स्टडी बेस्ड हैं, लेंदी पैराग्राफ्स पे आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, उसके लिए रीड थॉरली एंड रिवाइज मल्टीपल टाइम्स. मैनेजमेंट इज वेरी कंफ्यूजिंग एट टाइम्स. हमें जब डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज पढ़ने को मिलती हैं, वी गेट कंफ्यूज बिकॉज मेनी ऑफ द थ्योरीज माइट हैव रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. यू माइट कंफ्यूज किसमें क्या डिफरेंस है. सो अच्छे से पढ़ो, पहले समझकर मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो एंड सॉल्व लॉट ऑफ एमसीक्यूज. आई नो पीपल हु डू नॉट सॉल्व एमसीक्यूज, जस्ट डू प्लेन रीडिंग, समझ आ जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू द एप्लीकेशन पार्ट दे लैक इट देयर. सो यू वुड हैव टू सॉल्व लॉट ऑफ एमसीक्यूज बिफोर योर एग्जाम अंडर द 2 मार्कर क्वेश्चन. ठीक है. सो नेक्स्ट इज आरसी बेस्ड क्वेश्चंस. आरसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या है? ये क्वेश्चंस भी लेंदी पैराग्राफ्स पे आते हैं. ठीक है, जैसे यहां पे लेंदी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे थे, आरसी में भी लेंदी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. बट डिफरेंस ये है कि आरसी बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना, उसके लिए मे बी इफ यू डू नॉट न्यू द एग्जैक्ट थ्योरी व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड और एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड इन द पैराग्राफ, you can still do them because the answers are within the paragraph itself.
मतलब अगर आपने कल्चर नहीं पढ़ा है बट स्टिल बाय रीडिंग द पैराग्राफ यू वुड बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस बिकॉज दे आर डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज. It's a type of a reading comprehension that comes in English. I'll show you one example. तो ये पैराग्राफ आया था आपका. क्वेश्चन पूछा गया था द पैसेज मेंशन थ्योरीज दैट हैव एक्सपेंडेड बियॉन्ड द ओरिजिनल डेवलपमेंट इन रशिया. विच थ्योरी इज बीइंग रेफर्ड टू. और यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है फॉर एग्जांपल वाइगोत्स्की थ्योरी इनिशियली डेवलप्ड इन रशिया एम्फसाइज दैट लर्निंग इज इनहेरेंटली सोशल एंड डिपेंडेंट ऑन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. तो यहाँ पे बहुत क्लियरली वाइगोत्स्की थ्योरी के बारे में मेंशन्ड है दैट लर्निंग इज बेस्ड ऑन योर सोशल इंटरेक्शन, और यही वाइगोत्स्की भी यहाँ पे ऑप्शन में है. एक और आंसर क्वेश्चन दिखाता हूँ. व्हाट टूल डज द कंपनी मेंशन इन द पैसेज ऑफर टू द ऑर्गेनाइजेशंस. और यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है अंडरस्टैंडिंग द क्रिटिकल रोल ऑफ कल्चर इन द वर्क प्लेस. सम कंपनीज हैव डेवलप्ड टूल्स टू मेजर एंड assess organizational culture. One such company offers an online survey. ऑनलाइन सर्वे, और यहां पे बी ऑप्शन में है सर्वे टूल. तो इस तरह के आरसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. नाउ दिस इज अ न्यू ट्रेंड जो पहले नहीं आते थे. विल दिस कैरी फॉरवर्ड, आई डोंट नो, बट इसके लिए कोई अलग प्रिपरेशन नहीं चाहिए. जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन कर लोगे और ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना सीख लोगे. सो इवन इफ दे कम इन द एग्जाम you can easily do them. There is not no any other preparation required for such type of questions. और ये बुक्स हैं जो आप यूज कर सकते हो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए. प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय एल.एम. प्रसाद 10th एडिशन. फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की एक बुक आती है एल.एम. प्रसाद की 2021 एडिशन, एंड बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाय बी.एन. घोष, इसका एडिशन 1 पढ़ लीजिएगा. ये तीनों बुक्स वुड बी सफिशिएंट टू हेल्प यू कवर योर मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव. ठीक है. और बुक्स के बारे में अगर डिटेल जानना है कि कौन सी बुक से कौन सा चैप्टर पढ़ना है, देन गो फॉर दिस वीडियो इन दिस सीरीज. बी फॉर बुक्स का वीडियो है, ठीक है, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. So that was about management objective. Now let's come to management descriptive, which is again kind of worth 25 marks. Now first of all, questions in management descriptive are pretty easy. जो syllabus आपने objective के लिए पढ़ना है वही syllabus descriptive के लिए है, कोई अलग नहीं है. और डिस्क्रिप्टिव में अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया है व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिफाइंस इट नीड्स एंड प्रिंसिपल्स. व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एथिक्स इन बिजनेस. व्हाट इज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन. So these kind of direct theoretical questions come in management because management doesn't have anything analytical. Question मुश्किल बनाए जा सकते हैं but they are not making it. But one thing that you need to understand is that most of the questions that are being set in your exam are kind of related to the syllabus tags. मतलब एक एक चैप्टर के अंदर सब टॉपिक्स बहुत हैं, बट जो क्वेश्चंस वो डाल रहे हैं वो जो सिलेबस में मेन टैग्स लिखे हुए हैं, मेन वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसमें से डाल रहे हैं. जैसे कि व्हाट आर द की फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एथिक्स इन बिजनेस, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है व्हाई एथिकल प्रॉब्लम्स अकर इन बिजनेस, एथिकल प्रिंसिपल्स इन बिजनेस. तो यहां से क्वेश्चन आंसर हो सकता है. व्हाट इज द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स, तो यहां पे क्लियरली मेंशन्ड है कम्युनिकेशन चैनल्स. ठीक है. व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिफाइन इट्स नीड्स एंड प्रिंसिपल्स. तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस और उसके फैक्टर्स और मैकेनिज्म्स को जब आप समझेंगे, प्रिंसिपल्स आपको अपने आप समझ आ जाएंगे. तो ये मेन सिलेबस टैग्स को अगर आप अच्छे से पढ़ जाए ना कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आई थिंक वो एक क्विक प्रिपरेशन हो सकती है. बट अदरवाइज क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बट काफी बार सिलेबस टैग से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और मैनेजमेंट में इफ यू वांट टू रियली स्कोर वेल इन योर आंसर, क्वेश्चंस आसान है, सभी लोग आंसर लिख लेंगे, बट हाउ डू यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ इन द आंसर राइटिंग, दैट इज बाय गार्निशिंग योर आंसर. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय गार्निशिंग योर आंसर. आप होटल में गए कभी, वहां पे आपने देखा है पनीर के ऊपर ना वो धनिया और अलग अलग चीजें कुछ डाल के लाते हैं ताकि वो अच्छा दिखने लग जाए. दैट इज द गार्निशिंग. चीज वही है, उसको सजा दिया गया है. इसी तरह आपका आंसर थ्योरी में इट वुड बी द सेम. थ्योरी वुड नॉट चेंज, बट हाउ वुड यू डेकोरेट योर आंसर is through lot of examples. Your garnishing, your dhaniya is example. For a case, आप सोचिए आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप पे आंसर लिख रहे हैं. You can explain what is transformational or transactional leadership, but if you can give real life examples of Bill Gates, that how and why Bill Gates was a transformational leader or why Henry Ford was a
how Bill Gates is a transactional leader and Henry Ford is a transformational leader, I think that will give spice to your answer, and paper examiner would also get a feel that yes, you have understood it, understood the concept, and you are related to the ground. You understand the reality of what is happening in environment around you. You can relate the theory with the practical world. तो इस तरह के एग्जाम्पल देने बहुत 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 ज़रूरी है। और मैनेजमेंट डिस्क्रिप्टिव के लिए ये बुक्स तो आपने पढ़नी ही है, साथ में एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टीफन पी रॉबिन्स की बुक आती है, विच हैज़ बीन को-ऑथर्ड बाय एन इंडियन, निहारिका वोरा। ठीक है, यही निहारिका वोरा वाला एडिशन लीजिएगा, बिकॉज नहीं तो आपको फॉरेन एडिशन मिल जाएगा विच माइट नॉट बी इन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। इसमें काफ़ी इंडियन एग्जाम्पल्स हैं, सो यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो दैट वाज अबाउट मैनेजमेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द फाइनेंस पार्ट। तो फाइनेंस भी 50 मार्क्स का आता है। Management was 100% static. There was no current affairs in management, whereas in RBI finance, out of this 50 marks, static would be around 50%, current would be around 50%. We can say 25 marks each. ठीक है, ये रेशो जो है करंट का बढ़ता जा रहा है। पहले स्टैटिक 70 आता था, करंट 30, फिर स्टैटिक 60, करंट 40, या 50-50 हो गया। नेक्स्ट ईयर शायद स्टैटिक 40 रह जाए, करंट 60 हो जाए। अगर मैं ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में डिवाइड करूं, ऑब्जेक्टिव 25 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव 25 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव पार्ट में स्टैटिक का वेटेज अराउंड 12 मार्क्स, करंट का 13 मार्क्स। डिस्क्रिप्टिव में स्टैटिक का वेटेज अराउंड 10 मार्क्स, करंट का वेटेज अराउंड 15 मार्क्स। ठीक है, तो ये ब्रेकअप है। सबसे पहले हम स्टैटिक पार्ट की बात करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में 12 नंबर का स्टैटिक, डिस्क्रिप्टिव में 10 नंबर का स्टैटिक। वी विल डिस्कस अबाउट this static from the angle of objective and descriptive, and then we will move on to the current affairs in the objective part, in the descriptive part. So if I start with finance static for objective and descriptive, now this is the official syllabus given in the notification. The first question that comes to the mind of aspirants is that, sir, I am not from finance background. Is finance difficult? Will I be able to crack RBI Grade B without having a finance background? I just want to tell you one thing. If you see the name of the subject, it written Journal Finance. Journal Finance is not any subject. Finance is a subject, but Journal Finance is not any subject. Now, why they have written Journal Finance is because they want to make it very clear that this is not core finance, which is being studied by CAs or CFAs. This is Journal Finance, which anybody can do, anybody can learn, and and since the paper is for journalist domain, anybody from any background can apply. This is the journal finance that is being asked. This is not core finance. तो आप अपने मन से डर निकालिए, वो बहुत जरूरी है, because then only you would be able to prepare for the finance. अब फाइनेंस ऑब्जेक्टिव और स्टार्टिंग में सिलेबस तो बहुत बड़ा है. आई हैव डिस्कस द वीडियो इन अ सेपरेट वीडियो इन दिस सिलेबस, इन दिस सीरीज बाय द नेम ऑफ डिकोडेड सिलेबस. बट विच चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंस? अगर मैं इसको देखूं, यहाँ पे ये वाले चैप्टर्स हैं: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो रेशियोज, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, रिस्क मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग सिस्टम प्लस एनबीएफसीज. These are the important chapters out of the whole syllabus that is listed here. तो ये वाले चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं. ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए. और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ. फाइनेंस में भी यू विल गेट 1 मार्कर एंड 2 मार्कर. 1 मार्कर क्वेश्चंस आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. फॉर एग्जांपल, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज विच रिस्क आर एसोसिएटेड इन द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो कैलकुलेशन. तो ये बेसिकली एनबीएफसी से क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आर एनबीएफसीज, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. Then there are 2 marker questions which are again paragraph based, as I told you in management. So this question is based on a paragraph where they are discussing about Reserve Bank of India introducing small finance banks in India. तो ये वाला क्वेश्चन हमारा बेसिकली बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है. एक पैराग्राफ आया है और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं. दैट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बैंक आस्क्ड इन द पैसेज. द आंसर वाज स्मॉल फाइनेंस बैंक. देन व्हाट इज द प्राइमरी ऑफ aim of banks? It is serving the needs of underserved populations. ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे. 2 मार्कर में पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. हर पैराग्राफ पे 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं. क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं. इफ यू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस. और न्यूमेरिकल फाइनेंस में बहुत सारे लोग न्यूमेरिकल के बारे में पूछते हैं.
because there are many chapters which are technical, जैसे कि income statement, balance sheet, cash flow ratios, derivatives, bonds. These are technical chapters, numerical based chapters. But exam में क्या numerical आते हैं? The answer is no. 2017 तक it was having a good weightage of numericals, but आप उसके बाद देखिए 18 में, 19 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, the weightage of numerical has decreased considerably. The weightage of numerical has decreased considerably. In fact, last 4 years में अगर आप देखेंगे 0 mark, 0 mark, 1 mark, 0 mark. ये 1 mark भी it was straightforward formula based question that anybody could have done. तो numerical have almost vanished, and that's why I told you कि if you are from a non-finance background, there is nothing to worry because they themselves have mentioned that this is journal finance, so that anybody with a decent knowledge of finance can answer the paper. That's why they are not asking the numericals in the exam. ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए जो मैंने बेसिकली आपको ऑब्जेक्टिव एंगल से बताए थे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव. तो ऑब्जेक्टिव एंगल से तो ये वाले चैप्टर्स हो गए. Can you leave all other chapters? Now, there are a lot of chapters in the syllabus which I have not put here. For example, financial inclusion, public-private partnership. I have not put those chapters in the list here. Can you leave those chapters? I would say no, because अगर मैं डिस्क्रिप्टिव एंगल से देखूं, अभी तक मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर के एंगल से बताए थे. अगर मैं डिस्क्रिप्टिव एंगल से देखूं तो यहां पे जैसे दो क्वेश्चंस का एग्जांपल लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर डेरिवेटिव्स, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स. सो दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम द डेरिवेटिव्स चैप्टर. ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स व्हाट एवर वी हैव मेंशन्ड उसमें से सीधा आपका क्वेश्चन आ गया. यहां से एक और लर्निंग है, हालांकि दिस क्वेश्चन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इज फ्रॉम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बट जर्नली जो ये टेक्निकल चैप्टर्स है ना, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, जो मैं कहता हूं कि जहां से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो एंड रेशियोज, यहाँ से generally we earlier used to say that descriptive questions are less probable, but now since they have asked questions based on derivatives, which is a technical chapter, in future they can even ask you questions from income statement or balance sheet or cash flow. ठीक है, तो objective question can come from the important chapters that we listed for objective, and moreover from the technical chapters also. That is one learning. अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. सपोज ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय आरबीआई फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन. नाउ इज फाइनेंशियल इंक्लूजन लिस्टेड हियर इन द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स? द आंसर इज नो. बट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन इन योर सिलेबस? द आंसर इज यस. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन आपके सिलेबस में है. सो इट मीन्स दैट वॉट एवर चैप्टर्स आई हैव लिस्टेड as important for objective, these are from the objective orientation, but when it comes to descriptive you would have to read all the chapters, क्योंकि जो chapters important list में नहीं है वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं. but try to understand that when you read a certain chapter from a descriptive orientation, it doesn't need you to go into too much depth. If you understand the overall concept, overall understanding of the chapter, you will be able to answer descriptive questions in your exam. और ये स्टैटिक के लिए बुक्स हैं, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम 2023 एडिशन, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग 2023 एडिशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स 2023 एडिशन. तो हमारी ये 3 बुक्स हैं. ठीक है, और कुछ टॉपिक्स आपको इंटरनेट से पढ़ने पड़ेंगे, और अगर आप इन बुक्स में से डिटेल में जानना चाहते हैं दैट कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, देन अगेन इन दिस सीरीज बी फॉर बुक्स में देयर इज अ वीडियो ऑन दी बुक्स फॉर फेज 2. आप वो देखिए, आपको पूरा चैप्टर वाइज डिटेल इसका दिया जाएगा. सो दैट वाज अबाउट स्टैटिक under descriptive and objective. Now let's move on to the current under objective. That finance में जो current affairs आते हैं, which I have told you that is worth around 13 marks, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए I want you to cover 3 areas: reports, schemes and finance current affairs. Now I've specifically mentioned that what will be there in each of these areas. Under finance current affairs, you would have to study RBI notifications, SEBI notifications, and any news related to Ministry of Finance. Apart from that, जो भी आपके फेज 2 के टॉपिक्स हैं, जैसे कि डिजिटल बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्टॉक मार्केट, रिस्क मैनेजमेंट, उन टॉपिक्स से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ है वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी. फिर स्कीम्स रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं. और ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए
इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग इंडस्ट्री बाय आरबीआई। ये 6 रिपोर्ट्स हैं जो आपको पढ़नी है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको लिख लीजिए। अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, तीनों एरियाज के बारे में। और ये तीनों एरियाज आपको 6 से 9 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, मतलब 6 to 9 months वर्थ ऑफ करंट अफेयर्स अंडर ईच ऑफ दीज एरियाज यू वुड हैव टू कवर। मतलब अगर आरबीआई नोटिफिकेशंस पढ़नी है एग्जाम से 6 से 9 महीने पहले, 6 इज मस्ट, 9 इज डिजायरेबल। अगर स्कीम्स पढ़नी है तो वही स्कीम्स जो एग्जाम से 6 to 9 months पहले न्यूज में थी या लॉन्च हुई थी, उनको पढ़ना है। रिपोर्ट्स तो वैसे जनरल है, अगर आरबीआई एनुअल रिपोर्ट एग्जाम से 10 महीने पहले भी रिलीज हुई है, पढ़नी पड़ेगी। सिमिलरली करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट अगर एग्जाम से 11 महीने पहले भी रिलीज हुई है, पढ़नी पड़ेगी। सो हेयर 6 to 9 months लॉजिक विल नॉट अप्लाई बिकॉज यू वुड हैव टू रीड द रीसेंट रिपोर्ट्स, दैट्स इट। जब भी लास्ट रिपोर्ट रिलीज हुई है, चाहे 11 महीने पहले चाहे 12 महीने पहले, वो आपको पढ़नी पड़ेगी अंडर द रिपोर्ट्स पार्ट। अब पहले पोर्शन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। So whatever I have mentioned here, RBI notifications, why I have mentioned is not just because I like it. It is indirectly mentioned in your syllabus. If you go to the finance section under the notification, there is a suggested reference material. Under that suggested reference material, they have categorically mentioned material source from RBI website. This is RBI notifications. Then I am saying SEBI notifications are also important. So though it is not mentioned under suggested reference material, but SEBI notifications are also important. ठीक है, तो ये मैंने यहीं से आपको आइडिया दिया है कि आपके एग्जाम में आ सकता है फ्रॉम दी नोटिफिकेशन इटसेल्फ। सिमिलरली जो मैं ये बोल रहा हूं फाइनेंस न्यूज रिलेटेड टू फेज 2 टॉपिक्स, तो ये फेज 2 टॉपिक्स कौन से जो आपके सिलेबस में है, जैसे कि डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग कहाँ है आपका? डिजिटल बैंकिंग आपका है ये। फाइनेंशियल इंक्लूजन कहाँ है? ये। स्टॉक मार्केट मतलब ये वाली इक्विटी मार्केट। रिस्क मैनेजमेंट कहाँ है? ये रहा। So all these topics that I mentioned here, which are related to phase 2 topics, they are actually part of your phase 2 syllabus that has been mentioned here. So let me show you some questions. जैसे कि ये क्वेश्चन आया था, what are the ways and means advances limit for the second half of fiscal year 2024-25? ये आरबीआई नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। Similarly, under the liberalized remittance scheme, all individuals including minors are allowed to freely remit up to dash amount per financial year. ये भी आरबीआई नोटिफिकेशन में से रिलेटेड है। और आप क्वेश्चन देख रहे हैं कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और फैक्चुअल है, फैक्ट्स पे आ रहे हैं, कितने करोड़, कितने रुपए। ये क्वेश्चन सेबी नोटिफिकेशन से है। अंडर द रेगुलेटरी लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी करता है। तो सेबी ने कुछ रेगुलेशंस बनाई हैं उससे रिलेटेड, उस पर क्वेश्चन आया है। देन जो मैं फेज 2 टॉपिक्स की बात कर रहा था, जैसे कि हाउ मेनी सेकेंडरी यूजर्स कैन बी डेलीगेटेड एक्सेस इन यूपीआई, ये बेसिकली डिजिटल बैंकिंग या डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड है, बिकॉज दैट यूपीआई इज अ डिजिटल पेमेंट। देन द सेटलमेंट टाइमलाइन फॉर डेट सिक्योरिटीज was reduced from T+6 to which of the following? This is related to stock market. ठीक है, तो आरबीआई नोटिफिकेशंस, सेबी नोटिफिकेशंस, फेज 2 टॉपिक्स, whatever question I have showed you, all of them are straightforward but factual. सिमिलरली जो मैंने बोला स्कीम्स रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी कुछ स्कीम्स लॉन्च करती है, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है, उस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है। तो इस तरह से जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम्स हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, दे आर ऑल्सो बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम, दो वेरी रेयरली, बट यू मस्ट डू देम। कुछ 9-10 स्कीम्स होंगी जो आपको करनी है। जो तीसरा एरिया मैंने आपको बताया है कि रिपोर्ट्स आपको करनी है, अगेन दिस इज नॉट रैंडम दैट आई हैव टोल्ड यू, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल। जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे यहाँ मेंशन्ड है, ये यहाँ मेंशन्ड है। ठीक है, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट यहाँ मेंशन्ड है, ये यहाँ मेंशन्ड है। ठीक है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस यहाँ पे मेंशन्ड है, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस बैंकिंग इन इंडिया यहाँ पे मेंशन्ड है, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। तो यही सारी चीजें मैंने निकाल के, विच इज मेंशन्ड अंडर सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल, आई हैव गाइडेड यू हियर, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं। लेट मी शो यू। जैसे कि ये क्वेश्चन आया था, एज पर आरबीआई's रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस फॉर द ईयर 2003-24।
ठीक है, तो ये करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर ऑफ द बैंक? ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो आरबीआई की आती है वहां से आया है। So these are just examples, and again here also you can say that the questions are very straightforward and factual. They are not conceptual. तो इसमें से देख लो, इसमें से देख लो, इसमें से देख लो, all these questions are very straightforward. They are factual. The only thing that you need to do is that read everything and retain it. Retention would be the key here. ठीक है, और जो ये सारी रिपोर्ट्स है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो लोग अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं दैट सर हाउ टू रीड दिस रिपोर्ट्स एज दे आर वेरी बिग। देखिए, फॉर इकोनॉमिक सर्वे प्लस यूनियन बजट, रीड दी समरी फ्रॉम पीआईबी। ठीक है, फॉर इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट रीड दी समरी फ्रॉम पीआईबी, जो ये आपकी पहली दो रिपोर्ट्स हैं, पीआईबी पे समरी आती है, वो पढ़ लीजिए, काफी है। बट फॉर अदर रिपोर्ट्स जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, somehow try to read the whole report. There is no summary available on the RBI website or anywhere else. Try to read the whole report, and moreover it might not be required to read the whole report for the objective, but for the descriptive part, when I'll tell you about the finance current part from the descriptive, ठीक है, वहां पे मैं बताऊंगा कि डिस्क्रिप्टिव के लिए तो यू नीड टू रीड द होल रिपोर्ट इटसेल्फ। तो अभी आप इतना समझ लो कि आपको सारी रिपोर्ट पढ़नी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हो डिस्क्रिप्टिव हो, दोनों में इससे क्वेश्चन आ सकता है। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू दी करंट अफेयर बेस्ड प्रिपरेशन फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। ठीक है, फाइनेंस करंट डिस्क्रिप्टिव, इसमें दो चीजें हैं। आपके जो एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आइदर दे आर एडिटोरियल बेस्ड और दे आर फ्रॉम दीज रिपोर्ट्स, जो करंट अफेयर्स में से आते हैं। ठीक है, बाकी स्टैटिक की बात हम पहले कर चुके हैं। तो एडिटोरियल्स का क्या मतलब है? आपको कौन सी एडिटोरियल्स पढ़ने हैं? जो भी एडिटोरियल फाइनेंस या इकोनॉमी से रिलेटेड है और या फिर इन टॉपिक से रिलेट करता है, जो आपके फेज 2 के टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड एडिटोरियल्स आपने पढ़ने हैं। सो जैसे ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग, तो ये कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट से रिलेटेड है, और ये एडिटोरियल आपके इकोनॉमिक टाइम्स में आया हुआ है, और इस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो वॉट एवर थिंग्स आई एम मैपिंग कि एडिटोरियल पढ़ने हैं कौन से, सिलेबस से रिलेटेड, कहाँ पढ़ने हैं, इकोनॉमिक टाइम्स और अलाइनमेंट में, वो आपने पढ़ा और इसी से आपको क्वेश्चन आ गया, राइट। इसी तरह और क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, व्हाट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओएनडीसी, इस पे भी उस टाइम पे एडिटोरियल बहुत आए थे न्यूज़पेपर में, और ये कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, फिर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन आरबीआई हैज अलाउड प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस वाया यूपीआई, यूपीआई पे क्वेश्चन आया था। इस पे भी बहुत सारे एडिटोरियल्स आए थे उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, और ये भी आपका डिजिटल पेमेंट्स से रिलेटेड है। यूपीआई इज अ डिजिटल पेमेंट, राइट। तो एडिटोरियल्स पढ़ने हैं जो सिलेबस से रिलेटेड है, और उनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आते हैं। और ये वही रिपोर्ट्स हैं जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बताई थी। ठीक है, जो मैंने बताया था कि आपके रेफरेंस मटेरियल में मेंशन है, ये वही रिपोर्ट्स हैं, यही हमको डिस्क्रिप्टिव के लिए पढ़नी है। आई टोल्ड यू दैट टाइम दैट दीज रिपोर्ट्स नीड टू बी रेड इन डिटेल, बिकॉज यहाँ से डिस्क्रिप्टिव भी आ सकता है, और वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इन सारी रिपोर्ट्स में से डिस्क्रिप्टिव आ सकता है, एंड यू वुड हैव टू रीड दिस रिपोर्ट्स इन डिटेल। इस एक एक रिपोर्ट में बहुत सारे एरियाज होते हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे में वो आपको रूरल डेवलपमेंट के बारे में भी बताएंगे, आपको विमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी बताएंगे। देयर लॉट ऑफ एरियाज विच आर डिस्कस्ड इन दीज रिपोर्ट्स। तो सारी रिपोर्ट्स डिटेल में पढ़नी है, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे कि डिस्कस दी 5 की डिजिटल इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस इन द यूनियन बजट एंड देयर पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी। तो क्वेश्चन कहाँ से आया? यूनियन बजट से। करंट अफेयर से क्यों है? क्योंकि रिसेंट यूनियन बजट से आया है, और यूनियन बजट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो अगर आप यूनियन बजट पढ़ के जाते, ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेते। ठीक है, और फाइनेंस में अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना, क्वेश्चंस आर मिक्स, मतलब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 5 डिजिटल इनिशिएटिव्स जो यूनियन बजट में बताए गए हैं और उनका क्या इम्पैक्ट होगा। ये अगर आपने यूनियन बजट की समरी पढ़ी है, आराम से कर लेंगे। देन देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे आर कॉम्प्लेक्स, जैसे डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग। वैसे अगर आपको ये चीज समझ आई हुई है, इट वुड बिकम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर यू, बट राइटिंग इट माइट नॉट बी इजी।
जैसे व्हाट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये इजी पार्ट है, बट हाउ इट विल बीट अदर ई कॉमर्स जाइंट्स लाइक अमेजन एंड फ्लिपकार्ट, दिस इज बिट एनालिटिकल, सो आई वुड से दिस पार्ट इज कॉम्प्लेक्स. So some questions would be pretty straightforward और some questions would be kind of complex. ठीक है, बाकी ये तो हो गया कि आपको एफएम में डिस्क्रिप्टिव में क्या आ सकता है, करंट में, स्टैटिक में, बट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज नॉट जस्ट ओनली अबाउट कंटेंट कि आपने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ लिए, कुछ एडिटोरियल्स पढ़ लिए, उससे दिक्कत सॉल्व नहीं होगी. देयर आर अदर स्किल्स दैट यू नीड टू लर्न. फर्स्ट इज रिकॉल वर्सेस रिकॉग्निशन. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब आपके सामने ऑप्शंस होती हैं, यू कैन रिकॉग्नाइज वन ऑफ द ऑप्शंस एज द आंसर एंड मार्क इट. वो रिकॉग्निशन है जब देख के याद आ जाए. जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं कि गूगल के लोगों में कौन से कलर हैं, आपको ऐसे याद नहीं आएगा बिकॉज आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, आपके सामने नहीं है. जब आपके सामने आ जाएगा आप एकदम रिकॉग्नाइज कर लेंगे ये गूगल का लोगो है. दिस इज रिकॉग्निशन. आंसर राइटिंग में रिकॉल चाहिए होता है, recognition नहीं. MCQs में recognition चाहिए होता है, and we are very poor on recall. Sometimes people are not able to recall even 1 point though they would have read 10 points on something. So इसका best solution है that you work on mind maps. Try to learn everything through mind maps. उससे क्या है, आप उनको बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो. Quick revisions would help you have better recall over things and better answers in your paper. Spelling and grammatical errors. हमें टाइपिंग की आदत है. व्हेन वी टाइप ऑन वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड ऑल, वी आर नॉट केयरफुल अबाउट आवर स्पेलिंग मिस्टेक्स बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इटसेल्फ करेक्ट्स एवरीथिंग. बट पेपर में नहीं होगा ये. पेपर में वो स्पेलिंग जो हमें आते हैं वो भी गलत लिख के आएंगे बिकॉज ऑटो करेक्शन नहीं हो रही है. सो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है. दो वी नो दी स्पेलिंग्स बट व्हेन वी आर टाइपिंग वी टेंड टू टाइप देम इनकरेक्टली एंड देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस फॉर इट, आई वुड से. Typing speed is one of the key areas. If you're not able to complete your paper, I would say मतलब आपकी सारी मेहनत खराब जा सकती है. You need a typing speed of, I would say, around 1600 words in 90 minutes. ठीक है, so that is around 20 words per minute would suffice, but this is when you need to think, structure and write everything. You are not just reading and typing it. फ्रीज वर्ड लिमिट्स इज अनदर एरिया. पेपर में क्या आ रहा है, अगर 400 वर्ड लिमिट है, आप जैसे ही 400 वर्ड्स लिख देंगे आगे टाइप ही नहीं कर पाएंगे. तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे आंसर कंप्लीट करना है इस वर्ड लिमिट में. ऐसा नहीं लिखते जा रहे हैं और आधी चीज लिखी है, वर्ड लिमिट खत्म हो गई. टॉपिक वाइज फॉर्डर. अब बहुत सारे लोग जब टॉपिक्स पढ़ते हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है कि सर हमें पॉइंट्स याद नहीं रहते. तो टॉपिक वाइज फॉर्डर बनाओ. जैसे मैंने ये ईएसआई में भी एग्जांपल दिया था हेल्थ का. यहाँ पे आप एफएम का ले लीजिए. आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन टॉपिक लिखा. फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड अगर कोई रिपोर्ट आई है, कोई स्कीम आई है, आपने यहाँ मेंशन कर लिया. कोई और पॉइंट है, डेटा पॉइंट है, आपने यहाँ मेंशन कर लिया. और आपने कुछ जनरल पॉइंट्स बना लिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड हमारे कंट्री में क्या चैलेंजेस हैं, क्या रिफॉर्म्स हुई हैं, करंटली क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, डिफरेंट रिपोर्ट्स क्या फैक्ट्स दे रही हैं. ठीक है, तो इस तरह से जब आप अपने नोट्स बनाएंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड, आपको इन्हीं नोट्स को समराइज करके आना है आंसर में. यू नीड नॉट रिमेंबर ऑल दी डेटा पॉइंट्स. फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड कम से कम 100 डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं, बट इफ यू नोट डाउन अराउंड 10 डेटा पॉइंट्स, 20 डेटा पॉइंट्स, दैट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर यू. और एग्जाम में इंटरफेस में सबसे ज़्यादा दिक्कत कीबोर्ड की आती है. हम एक तरह के कीबोर्ड को हैबिचुअल हो जाते हैं अपने घर पे टाइप करके. एग्जाम में डिफरेंट तरह का कीबोर्ड मिलता है, सो वी टेंड टू टाइप स्लो ऑन दैट विच क्रिएट्स पैनिक. सो आप घर पर जब टाइपिंग प्रैक्टिस करें, please type on different type of keyboards. Maybe buy 20 keyboards of different types. When on 20 days you type, use one keyboard at every different instance so that you are not getting habituated to only one type of keyboard. Exam में आपको बहुत help करेगा. Evaluation is another key area which might be a challenge. Some people keep on typing and typing answers, but they do not get them evaluated. Please do that. Consult some of your friends, your seniors who may help you in evaluating your answers because लिखने का पर्पस तभी पूरा होगा जब आपके आंसर्स इवैल्यूएट होंगे. एंड राइट वन आंसर डेली. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आंसर राइटिंग इज अ स्किल. यू माइट रीड 100 पेजेस ऑफ कंटेंट बट दैट इज ऑफ नो यूज अनलेस एंड अंटिल यू राइट 100 आंसर्स ऑल्सो. तो आपका टारगेट होना चाहिए एग्जाम से पहले 300 आंसर्स मुझे लिख के जाना है. सो दैट इज अबाउट what I wanted to tell you about finance and management, right? So we are done with F for FM. In the next video, we will start with G for game plan, where we will discuss about QRE and GA. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.